So see, normally I suggest that you divide your syllabus in 30 days, right? 30 days में divide कर लो, right? And just give 4 to 5 hours per day for your self study. 4 hours will be sufficient, right? Say one unit, you have taken any unit. In first 10 days you should take those units that you can cover very easily. In the middle portion you take those units which are heavy, and in the last also you take those units which are very easy, right? Because initially if you take the heaviest unit, you may lose hope कि time consuming हो रहा है, right? It is not working for me. So every time you start, you just take the units that are very easy for you, right? Once you have chosen the unit, you just spend 1.5 hours or maybe less on just reading, or you can say revision, right? It will be a kind of passive revision that your mind just read the information or the dimensions that you already know, right? After looking that, take that PYQs of the same topic, right? PYQs of the same topic, and then just make the framework of each and every question. Make the framework, just try to scribble the introduction, just try to scribble what graphic, scholar, example, whatever you want to put in, and then you just think of the conclusion. Do not try to memorize introduction or conclusion. That should be in sync with the question, the demand of the question. So you just start thinking how will you write, right? This exercise may take 2, right? So 3 questions in that, so maybe you are spending 60 minutes here, right? But what will happen once you start doing this, you will realize that there are deficiencies in your understanding, right? So you may go back to your notes just to refurbish that information and just pen it down there. So that exercise may again take 1.5 hours, 2 hours. Maybe let's take the 2 hours, right? This will be your active revision plus your brainstorming. Here you will start developing the interlinkages. If you face any difficulty in thinking, you are unable to think about the framework, you are not able to find the possible links that you can develop, anytime come to me, call me, you have my numbers, right? आप मुझे text करो जैसे भी, ठीक है? इसके बाद क्या करो, just write 2 questions per day. Just 2 questions, right? These 2 questions you will write the toughest one. This exercise will give you in 30 days a complete revision, right? If I come for the second revision, round 2, I have revised just now thoroughly. That time will be reduced to half. This time again will be reduced to half. That time I am not reducing, right? That means in the first round I have written 60 questions. I have made framework of 600 questions, right? Next round I will be writing the same 60 questions, right? And I am strengthening this 600 frameworks, right? So next round will be in 15 days, just 15 days. It should not be more than that. Third round will be in 10 days. Again 60 questions you are going to write, right? So 30, 45, 10, 55, fourth revision again in 10 days, maybe 7 days अगर आपका थोड़ा speed बढ़ता है तो, right? So again you are adding up here and you are doing plus and plus here, right? It sounds mechanical, but if you creatively think on the questions, naturally your linkages will develop, right? Now your brain have answer before you see the question, right? आपको लिखने से पहले आपके ब्रेन में एक आंसर है. And what is the basic problem when you start writing? You have written one paragraph, one line, and then you think, what should I write more, right? The moment you think that what should I write more, you find answer from somewhere, you find a patch from somewhere, and you just do the patchwork. Your answer is not coherent then,
So if you want to bring the coherence, do brainstorming, and that should be a regular exercise. That is not something a rocket science or that I only know. Everybody knows that, but it is difficult to execute. That is the problem, right? So you do this exercise, it will help you in speed, number one, and it will give you structure अपने आप. लिवाई स्ट्रॉस कहते हैं कि आपका ब्रेन अपने आप स्ट्रक्चर करता है नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, राइट? उसको बताने की जरूरत नहीं है, आपका ब्रेन ऑलरेडी अरेंज कर लेगा इन नॉलेज को, राइट? लिंकेजेस भी डेवलप करेगा. सो डू दिस एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस. जितना ज़्यादा करोगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है? नॉर्मली जो कुछ लोगों का पेपर पूरा नहीं होता है, देखो जनरली 3 कारण होते हैं. पहला कारण है कि उसके पास प्रॉपर थॉट नहीं है, वो सोच नहीं पा रहा आंसर में लिखना क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है उस आंसर की, राइट? मतलब प्लान नहीं है उसके पास. दूसरा, जार्गन नहीं है, उसके पास लैंग्वेज नहीं है, राइट? और थर्ड एक हो सकता है कि राइटिंग. दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, कि मेरी राइटिंग स्पीड कम है, क्योंकि राइटिंग स्पीड हैंड की कभी होती ही नहीं है. इट इज द स्पीड ऑफ योर थॉट. इफ यू आर एबल टू थिंक, यू कैन राइट, राइट? सो ये जनरल एक्सरसाइज है जो आपको करनी है. दूसरा, जब भी आप फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, यू कैन कम टू मी एनी डे, राइट? यू जस्ट कम विद द फ्रेमवर्क्स दैट व्हाट शुड मोर, you know, what should I can include more into this particular answer, this and that, right? Moreover, जो हमारा एडवांस बैच है उसमें हम कर क्या रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं कंप्लीट, ठीक है? तो रिवीजन में क्या है, एक कंप्लीटली हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या क्या एडिशनल टॉपिक्स हो सकते हैं, और एक फास्टेस्ट वे में माइंड आपको रिवाइज, आपके माइंड से चीज़ें निकल जाएं. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन एडवांस कोर्स. हम टोटल 20 सेशंस पे पूरी एंथ्रो कर रहे हैं, ठीक है? 5-10 सेशन से टोटल रखे, ठीक है? मतलब हमने ऐसा रखा है कि 5 सेशन हर एक टेस्ट के लिए, ठीक है? तो 4 टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट के लिए 5 क्लासेस हैं, ठीक है? अगर मान लिया इन क्लासेस में, वो तो क्लासेस तो इसलिए कि रिवीजन हो जाए प्राइमरली, ठीक है? स्ट्रक्चरिंग हो जाए टॉपिक्स पे, ये है उसका पर्पस. बट इससे बियॉन्ड क्या होगा, जैसे वो खत्म होगा, आई विल बी फ्री फ्रॉम द स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, देन वी विल बी हैविंग द डिस्कशन, दैट काइंड ऑफ डिस्कशन वी आर हैविंग हियर. आप अपने डाउट्स लेके आओ, राइट? आराम से बैठ के चेयर टेबल पे वो बात करेंगे. अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो हम, अगर मान लिया कि कॉमन मास प्रॉब्लम हुई, देन वी कैन रिकॉर्ड इट समवेयर ऑन दी बोर्ड, और वो आपको बाद में रिकॉर्डिंग में भी डल जाएगी. अगर मान लिया कुछ ऐसा होता है कि भाई इट्स अ डिसेंट टॉपिक दैट समबडी आस्क्ड, और ये आ सकता है, ठीक है? जैसे आजकल चल रहा है कि भाई एक मेरे को लगा कि इंटरनेट की इथनोग्राफी बहुत हो रही है, राइट? सोशल मीडिया कम्युनिटीज जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो नेटनोग्राफी एक टर्म है. नेटनोग्राफी इज बेसिकली द एथनोग्राफी ऑफ द ऑनलाइन कम्युनिटीज, ठीक है? तो ये हमने थोड़ा सा उसमें देख लेंगे, राइट? हमने जैसे किया उस पर डिस्कशन, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो चल रहा है, जैसे आजकल मेंस्ट्रुअल लीव चल रहा है. एक टाइम पे उन्होंने एनिमिज्म और डीप इकोलॉजी का कनेक्शन पूछा था. अब हो सकता है वो मेंस्ट्रुअल टैबू और मेंस्ट्रुअल लीव का कनेक्शन पूछ लें आपसे, दोनों में कनेक्शन है, ठीक है? तो इस तरह की बातें सोचो. आज ही रिपोर्ट आई है कि विमेन जो जेंडर पैरिटी में 134 ईयर्स लग जाएंगे. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, जेंडर गैप रिपोर्ट, राइट? और यू नो दैट सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी जेंडर ऑल्सो, है ना? हम जेंडर स्टेटस और जेंडर रोल्स की बातें करते हैं. पिछले 1 साल में अगर आप डिबेट को देखो तो ये बात में ऐसा माना जाता था that women have any role in hunting. Later on, some scholars identified the role of estrogen, right? Role of many other, some archaeological evidences came to fore, and that started telling us that women played a very important role in hunting and supplying the meat to the, right? अगर हम बात करें से एम्बर एंड एम्बर की, एम्बर एंड एम्बर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स से एश हंटर्स का दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों का दिया हुआ है, जहाँ पे विमन एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है फैमिली के प्रोटीन सप्लाई में. शी इज नॉट जस्ट अ गैदरर, रादर शी ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन हंटिंग ऑपरेशंस, राइट? अब जैसे ये थोड़े दिन पहले इसका एक हमारा करण जौहर ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कुछ पिछले साल, दैट सेक्सुअल इनफिडेलिटी इज नॉट इनफिडेलिटी, राइट? समझ रहे हो? सेक्सुअल इनफिडेलिटी इज नॉट इनफिडेलिटी. तो अब जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, जीएस में, कि मैरिज इज लूजिंग इज सेक्रेड वैल्यूज, राइट? सेक्रेड जो वैल्यूज हैं वो जा रही हैं, राइट? तो अब इन चीज़ों में देखो कि हाउ वी कैन सी इट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस,
right? We know that premarital as well as postmarital sex is allowed in many communities. So sexual fidelity is not the only form of fidelity when we consider marriage as an institution, right? You can give n number of examples, say for premarital sex, for postmarital sex also. There are very loose rules about these things, right? Say you take example of खासा, खासा में रेंटी और ढंटी का कॉन्सेप्ट है, राइट? डुअल मोरालिटी है, जो कि सक्सेना और डॉक्टर मजुमदार ने स्टडी किया था, उनकी बुक में मेंशन्ड है, ठीक है? सिमिलरली आप देखोगे जो चुकची ऑफ साइबेरिया, राइट, दे ऑल्सो अलाउ पोस्ट मैरिटल सेक्स विद अदर पर्सन्स, राइट? रेंगमा नागा के अंदर भी क्या होता है कि शादी के बाद 1 साल तक गर्ल स्टे एट द फादर्स होम, राइट, and once she procreate, then she enters into the husband's house, right? The husband and the family knows that this child does not belong to them, but still there is no moral stigma attached to this, right? So we can see these things in a little deeper way. We just see the undercurrents which are going on in and around you, right? Whatever is happening now, ethnic जो violence चल रहा है मणिपुर पे, क्वेश्चन नहीं आया है 2 साल से, right? And this time it may be, राइट, देर आर मैनी फैक्टर्स जो कि अभी वो क्वेश्चन बनाने के लिए लेके आ सकते हैं, राइट? देर आर पॉलिटिकल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड नाउ ऑपोजिशन इज अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर नाउ, तो इट स्टार्टेड डिमांडिंग आंसर्स, राइट? सो द एग्जामिनर में आस्क राइट यू टू गिव योर ओपिनियन ऑन दैट, राइट? फिर इसमें बात ये हुई कि अमित शाह बोलता है कि हमें एथनिक डिवाइड को ब्रिज करना है। जुआल ओरम जो कि ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, खुद ट्राइबल हैं, वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। अब ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हैं, तो इज इट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और इट्स एथनिक इशू, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट? हाउ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट सी दिस, isn't it? So there is a debate in itself, right? There are two perspectives. How do you see? If you see it ethnic perspective, ethnic conflict, what are the rationale behind it? If you just see it as a law and order problem, what is your lens, right? So law and order lens एक तरह से जब आप देखते हो तो बहुत यूरोसेंट्रिक नॉर्म है, यूरोसेंट्रिक और एथनोसेंट्रिक एक वे है looking at the things. But if you look at things from a holistic perspective, from the application of the concept of ethnicity, ethnic groups, ethnic violence, ethnic assertion, right, cocktailed with your political decisions, the historical problems, the neighboring states issue, right? So you understand the things in a little greater detail. Ethno-nationalism, wonderful, right? So इन सब चीज़ों को मिला के जब हम देखते हैं तो अच्छे से होता है। पेपर 2 में नंबर लाने का एक सिंपल फॉर्मूला है, क्वेश्चन को देखो, जितने क्वेश्चंस को देख सकते हो और उनके ऊपर फ्रेमिंग करो, सिंपल फ्रेमिंग करो। लिखना क्या होता है कि लिखने की लिमिटेशन है, और लिखने के बाद आपका ब्रेन सिर्फ एक मोमेंटरीली काम कर रहा है, और एक ही थोड़ी देर में जब लिखते लगते हैं ना, पहला पैराग्राफ लिखा उसके बाद टनल हो जाता है विजन। यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि जब आपने पहला पैराग्राफ लिखा उसके बाद माइंड जो है टनल विजन में चला जाता है। Your mind is not thinking beyond that tunnel, right? If you want to breach that tunnel, so do brainstorming now, right? Do write weekly 2 tests undoubtedly, but 5 days do brainstorming and regularly write 1 or 2 questions per day. These are few things that we should do regularly, है ना? और एक बार करने लगोगे थोड़ा सा पेन होगा शुरुआत में, बट अगर 5 दिन 10 दिन खींच दिया, I think you can do much better. ठीक है, आप लोगों का स्कोर इतना भी कम नहीं है, 280s के अराउंड में जब आप चल रहे हो, दैट मीन्स यू जस्ट नीड अ लिटिल पुश, राइट? 320 से ज़्यादा दूर नहीं हो आप, राइट? दैट मीन्स यू हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ द सिलेबस, दैट शोज द सिंपल थिंग, राइट? तो आपको सिंपली जहाँ जहाँ पे भी असिस्टेंस चाहिए होगा, है ना, वो पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, जिस क्वेश्चन के लिए फ्रेमिंग चाहिए, बट कभी भी किसी क्वेश्चन का फ्रेमिंग मांगो, मुझे बस एक चीज़ करके दिखाना कि आपने पेन रखने की कोशिश की थी, यू डिड नॉट गिव अप, राइट? ऐसा नहीं हो कि आप नहीं हो रहा है मुझसे, राइट? क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मीन्स, राइट? सो इफ यू आर गिविंग अप नाउ, यू विल गिव अप देयर, राइट? सो डोंट गिव अप, राइट? डू
स्क्रिबल समथिंग, कुछ तो लिखोगे, गलत लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आज गलतियां करोगे तो कल सुधार भी होगा. इफ यू डोंट मेक मिस्टेक्स, व्हाट इज द गारंटी दैट you will not make the mistakes there. तो रिस्क अवर्सिव नहीं होना है, फ्रंट फुट पे खेलना है. जितने भी करंट अफेयर की जरूरत होगी एक बार पूरा सिलेबस निकाल लें आँख से, ठीक है, उसके बाद मैं दे दूंगा कि ये डाल लेना, ठीक है. कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टाइम एज ऑफ नाउ, और इतना करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है. आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको एसए भी पढ़ना है, आपको एथिक्स भी पढ़ना है, सो जस्ट लीव इट, ठीक है. आप क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करो, मैं आपको पर क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में ये वाला करंट अफेयर डालें. अगर आपके पास जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो कर लिया, उसमें से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग ले लो, सिंपल एज ए गाइड फॉर ए रेफरेंस. कोई जरूरी नहीं है पूरी को पढ़ना, बिकॉज कोई फ्रेमवर्क मिल जाए. हाँ, डायरेक्ट नहीं रीड करना, पैसिव रीडिंग नहीं देनी किसी भी चीज़ को. अब एक्टिवली ब्रेन को यूज करना है. जो भी आपके पास एक मेगा नोट्स हैं उनको बस पेज पलटो, राइट. वंस यू हैव गॉन थ्रू द पैसिव रीडिंग, find the questions, try to find answer from your side. Wherever you fall short of the knowledge, just go back somewhere to flip it over, right. फिर भी कम लगता है, मेरे को अपना पेज की फोटो भेज दो, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, राइट, कि इसमें मैं और क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ. आई विल रिवर्ट बैक, राइट, विद इन 5-6 आवर्स. जैसे मेरे को फ़ोन देखूंगा, अगर मैं क्लास से पहले हूँ तो नेचुरली सुबह ही कर दूंगा, अगर 3 से लेकर 9 के बीच में मैं बिजी हूँ, उसके बाद मैं फ्री हूँ, ठीक है. आप मुझसे रोज़ भी आने मिलना चाहें, इस टाइम पे मिल सकते हैं 1:30 to 3, ठीक है. शाम को 9 बजे से बाद 9 से 10 के बीच में तब मिल सकते हैं, ठीक है. हाँ, और धीरे धीरे अगर मान लिया कि आप लोग आएंगे तो मैं 1 बजे भी आना शुरू कर दूंगा, 12 बजे भी आना शुरू कर दूंगा, अगर आप लोगों का वो जैसे जैसे पास आता जाएगा, ठीक है. और आप थोड़ा सा रूटीन में आ जाएंगे. एक रिविजन के बाद मैं शाम को फ्री भी हो जाऊँगा, 6 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, तो 6 से लेके 10 बजे तक का टाइम फिर आप लोगों के लिए, ठीक है ना. जैसे 6 बजे वाला मैं फ्री हो जाता हूँ अभी, आप लोगों का 20 डेज का रिकॉर्ड करके सब कुछ आप लोगों की क्लास लेके उसके बाद वो करा देंगे. कब तक हो जाएगा सर? 20 जुलाई से पहले, है ना. 15 दिन और हैं. कितना, 8 क्लास हो चुकी हैं, तो देख लो कितना और होना है, ठीक है. तो जल्दी जितनी जल्दी हम कर सकते हैं उतना जल्दी करेंगे, क्योंकि टाइम उसमें वेस्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है. क्योंकि मैं कितना भी एक रिवीजन में देना चाहूँ, आपका कैच लिमिटेड ही होगा, ठीक है. तो आई बिलीव कि एक लेयर में कोई एक लिमिट से ज़्यादा ले ही नहीं सकता है, राइट. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक रिवीजन में आप कोशिश भी मत करो कि मैं सब कुछ ग्रैस्प कर लूँगा, राइट. इफ़ यू वांट टू स्पेंड 30 डेज ऑन इट, राइट, कि रिवीजन ही करना है ऐसे 30 डेज में, तो भी वो कम है, राइट. बिकॉज कंप्लीट पिक्चर लेने में बहुत सारा अलग अलग मूवमेंट में अलग अलग डायमेंशन में माइंड भागता है, हर रीडिंग में एक नई डायमेंशन देता है, राइट. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर मल्टीपल रिविजन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, rather than going for one time revision, ठीक है. तो एक बार कोशिश करो इस पे, अगर होता है तो. साथ साथ इसी मॉडल पे ही हम कोशिश भी कर रहे हैं इसमें, एडवांस कोर्स में कोशिश यही है कि आपको एक ब्रश अप दे दूंगा फटाफट, क्योंकि याद आता है सर. हाँ, जब आप सुनते हो ना, जैसे मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे बोलूँगा, तो आपको पता सब कुछ होगा, बट यू आर अनेबल टू थिंक कि क्या, कौन सी हेडिंग कब आनी चाहिए थी, है ना. आप शुरू में बोल दोगे एलेक्स जेफरीज ने किया था, है ना. फिर आप बोलोगे कि भाई सैटेलाइट डीएनए को स्टडी कर रहे हैं. सैटेलाइट डीएनए में हम करते क्या कर रहे हैं, उसमें हम VNTR, है ना. फिर बोलोगे कि भाई सिर्फ सैटेलाइट डीएनए नहीं, हम मिनी सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, उसके STR स्टडी कर लेंगे. ये 2-4 बातें करेंगे. कैसे? RFLP मेथड बता दोगे, है ना. अभी बातें क्लिक करने लगी हैं, है ना. फिर प्रोसेस याद आने में फिर टाइम लगेगा कि प्रोसेस है कैसा, है ना. पता सब कुछ है, बट क्या होता है, एक साथ याद नहीं आता है ना. और ये स्टॉर्मिंग, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, वो यही हेल्प भी करता है आपको, कि एक हेडिंग लिखा, प्रिंसिपल क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, आपको समझ में आ गया कि भाई 99.9% ऑफ डीएनए ऑफ ऑल ह्यूमंस इज सेम. दैट मीन्स द डिफरेंस इज इन जस्ट 0.1%, and that we need to identify. That can help us to identify any individual. सिंपल, यही प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है. तो ये बातें बस आपको सोचनी थी. अब इसमें अगर एग्जांपल्स आप लिखोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में श्रद्धा वालकर केस लिख दो,
जो रिसेंटली हुआ है ना। अगर न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी पे आ जाता है सपोज कोई क्वेश्चन, तो आप पोषण अभियान डालो, ठीक है। कोई और जैसे मान लिया कि जो हम हाइब्रिड क्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है, उसका कोई नाम आपको याद आ जाए, वो डाल दो, ठीक है ना। तो जो भी ये सब चीज़ें हैं, आप जीएस की नॉलेज को वहाँ सीधा डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अभी जैसे आजकल जेनेटिक डिस्टेंसिंग, हम जेनेटिक डिस्टेंस को स्टडी करते हैं ना कि भाई एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कितनी जेनेटिकली डिस्टेंट है, एक ह्यूमन ग्रुप दूसरे ह्यूमन ग्रुप से जेनेटिकली कितना डिस्टेंट है ना। तो नॉर्मली अभी तक जेनेटिक डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। हम क्लास में भी डायरेक्टली ये वर्ड यूज करते हैं कि कोई भी मेथड है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी जेनेटिक डिस्टेंस को पता करा सकता है। जैसे फैमिली का जो डीएनए फिंगरप्रिंट होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, अगर हम दूसरे बाहर वालों से देखेंगे तो वो भी जेनेटिक डिस्टेंस का एक मेजर हो सकता है। जीन सीक्वेंसिंग करके हम पता लगा सकते हैं जेनेटिक डिस्टेंस, है ना। पहले स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज होते थे, D2 डिस्टेंस बाय महालनोबिस मॉडल, अलग अलग स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज होते थे कि कैसे एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप से जेनेटिक डिस्टेंस पता कर सकते हैं। पिछली बार ग्लोटोक्रोनोलॉजी पूछा था ना, तो अब की बार मॉलिक्यूलर क्लॉक पूछ सकते हैं, क्योंकि ग्लोटोक्रोनोलॉजी इज बेसिकली बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर क्लॉक, that is talking about the diversification of the different species families, है ना। हाँ, प्राइमेट रेडिएशन जो हुआ या फिर कोई भी रेडिएशन हुआ, अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, है ना, मतलब कब डाइवर्ज हुआ। ग्लोटोक्रोनोलॉजी भी तो बेसिकली कर क्या रहा है कि कैसे एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में डाइवर्स होती गई और ऐसे ऐसे लैंग्वेज ट्री बनता गया। दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट ना, राइट। सो जस्ट थिंक अबाउट थिंग्स कि पिछली बार क्या पूछा था। आप देखो यूपीएससी हमेशा मेथड्स पे क्वेश्चन पूछ रही है, हर साल पूछ रही है वो, राइट। अब हमें तैयार होना है कि क्या क्या मेथड्स हमने कवर नहीं किए, राइट। कुछ आप देखो, सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस इज आल्सो मेथड। सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस मेथड ही एक है ना, जिससे कि लैंग्वेज का पता लगा सकता है। वो क्या कह रहा है कि लैंग्वेज डिटरमिन्स योर वर्ल्ड व्यू, है ना, और वही आपका कल्चरल बिहेवियर डिटरमिन कर रहा है। ये उनका आइडिया सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस का। तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स लैंग्वेज में पूछते ही आ रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन ग्लोटोक्रोनोलॉजी प्योरली लिंग्विस्टिक मेथड था, वो हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट, ठीक है। क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था? क्योंकि प्योरली लिंग्विस्ट यूज कर रहे हैं, और एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट जस्ट लिंग्विस्टिक्स। हम तो आर्कियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, है ना। आर्कियोलॉजी में उन्होंने एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस पूछ लिया था कि कैसे कैसे एनवायरमेंटल लेयर्स को समझ के हम, या फिर एनवायरमेंटल रिमेन्स को समझ के हम समझ सकते हैं कि कैसे इंडिया में ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, है ना। तो स्ट्रैटिग्राफी में हम वही देखते हैं, जैसे डी टेरा पैटरसन का जो हाइपोथेसिस था, है ना, और कैसे सनकालिया ने उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी किया। वो कहते हैं कि भाई इतनी लेयर्स हमें मिली, वो कहते हैं हमें तो 2 ही लेयर्स मिली है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है, सोचना है इन पे बस, ठीक है। और ये थॉट रेगुलरली डालना है, जितना रेगुलर आप करोगे एक्सरसाइज उतना ही आपको होगा, ठीक है। किताब को देखो लेकिन आंखों से नहीं, अंदर की आंखों से, है ना। गो ए लिटिल डीपर, राइट। आप रियलिटी मत देखो, यू सी द लॉजिक बिहाइंड रियलिटी, लिवाई स्ट्रॉस, राइट। आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय दैट गाय, राइट। समझ कम आता है ना, मुझे वही गाने पसंद आते हैं जो मुझे कम समझ आते हैं, राइट। सो ऐसा होता है ना, हमें वही म्यूजिक पसंद आता है जो समझ कम आ रहा होता है, राइट। सो दैट्स द ट्रुथ। हम उसी के पीछे ज़्यादा भाग रहे होते हैं जो हमसे दूर भाग रहा है, राइट, है ना। ये सच है ये तो। सो उसी के ऊपर ही काम करना है आप लोगों को, राइट। ट्राई टू सी द अंडर करंट्स, लॉजिक, डीप स्ट्रक्चर, डीप रियलिटी, नॉट जस्ट द सरफेस रियलिटी, ठीक है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग से होगा, करो। कोई सवाल, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हो पर्सनल, जो कि इससे बियॉन्ड करना है, तो भी हम कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स तक रेगुलरली अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। एज यू कैन से व्हेनेवर यू वांट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस असिस्टेंस कि भाई मुझे इसमें दिक्कत आ सकती है, इसमें आ सकती है, आई विल बी अवेलेबल, ठीक है।
तो ये है। कोई और सवाल है तो बता दो किसी भी तरह का। टेस्ट कहाँ लिख टेस्ट लिखने का टेस्ट सेंटर है, आप जाइए वहाँ जाके लिखिए। ओरल में? हाँ हाँ, वारन में ही है, मदर डेयरी के हाँ, सामने। अच्छा हुआ, ठीक है। हाँ तो वहाँ पे मिल जाएगा ना क्वेश्चन? हाँ हाँ, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, एक पेपर हो चुका है और वहाँ सर पे। कितने दिन में एक्सपेक्ट करेंगे इवैल्यूएशन? जैसे कोई क्वेश्चन में 5 से 6 दिन, 7 दिन मैक्सिमम। ओके ठीक है, और जितना जल्दी हो सकता है, हम जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं इस बार उनका डिले कर सकते हैं, आपको 2 से 3 दिन में कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब मैं मैक्सिमम टाइम फ्रेम आपको दे रहा हूँ 7 days, राइट। यू जस्ट राइट द क्वेश्चन पेपर, टेल मी द सेम डे, मैं कोशिश करूँगा उसी दिन, उसके 2 दिन में ही उसको आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का, हाँ, फेस टू फेस ही करेंगे। जैसे पेपर मैं आपके साथ हर एक बंदे का पेपर मैं पर्सनली डिस्कस करूँगा कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ हो सकता था, इस क्वेश्चन में ये हो सकता है। करेंगे हम कैसे, ऐसा नहीं है कि मैं एक बंदे का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको अकेले बिठाऊंगा, मैं 4-5 लोगों को बिठाऊंगा, सो दैट आप भी सुनो वो सेम बात। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो इनके साथ भी बैठेंगे। ठीक है, होता क्या है कि आप लोगों को जब दूसरे की कमियां दिखती हैं तो आप अपनी कमियां दूर करना शुरू कर देते हो, राइट। जब 5 लोग बैठोगे तो पहले तो हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे पेपर पे, उसके बाद आप भी लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। एक अच्छा ग्रुप बना लो, 4-4, 5-5 लोगों का, है ना। तो जैसे पिछली बार अभिलाषा ने रिमिता के साथ में एक ग्रुप बनाया था इन लोगों ने, एंड दैट वाज अ फ्रूटफुल ग्रुप, है ना। तो ऐसे एक छोटे छोटे आप 3-3, 4-4 जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जो कि लगता है कि दैट वी पीपल आर कंपैटिबल विद ईच अदर, यू सिट, डिस्कस विद मी। ठीक है, तो इन ग्रुप्स में आओगे तो आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, है ना, कि मैं आप लोगों को तरीके से बता पाऊंगा चीज़ों को। 4 जो टेस्ट सेक्शनली टेस्ट होंगे, फिर कुछ फुल लेंथ टेस्ट होंगे? 4 फुल लेंथ है, 4 सेक्शनल है। सेक्शनल भी मतलब 8 क्वेश्चन वाला ही होगा। सेक्शनल इज नॉट लाइक 10 क्वेश्चंस। सेक्शनल में फुल लेंथ पेपर होगा, वो एक सेक्शन को कवर कर रहा है बस। 250 मार्क्स के होगा? 250 मार्क्स का उसके होगा। बाद 4 फुल लेंथ अलग होंगे? हाँ, वो 4 फुल 8 टेस्ट होंगे? 8 टेस्ट होंगे टोटल। देखो, जो 4 सेक्शनल हैं, एक में पूरा सोशियो कल्चरल है प्लस लिंग्विस्टिक, सोशियो कल्चरल प्लस लिंग्विस्टिक प्लस थ्योरीज। सोशियो कल्चरल और थ्योरीज अलग नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो थ्योरीज ही है जो आपको ये सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस पढ़ना सिखा रही है ना। तो इंटीग्रेटेड है। अगर सोशल स्ट्रक्चर पूछ लिया तो वो सोसाइटी वाले पोर्शन में आता है 2.1 में, राइट। बट लिवाई स्ट्रॉस भी बात कर रहा है और रेडक्लिफ ब्राउन भी बात कर रहा है ना। सोशल इंस्टीट्यूशन, स्टेटस, रोल की रेडक्लिफ ब्राउन भी बात कर रहा है। ठीक है, सो दीज थिंग्स। अब मैरिज की बात करें, मालिनोव्स की बात कर रहे हैं मैरिज की, है ना। फैमिली की, मुर्डॉक वाज अ फंक्शनलिस्ट, राइट। सो बेसिकली थ्योरीज ही तो हैं, वो अलग अलग नहीं है, हम दोनों को इंटीग्रेट करके देखते हैं। दूसरे में आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन है, थर्ड में आपका इंडियन सोसाइटी प्लस आर्कियोलॉजी है, फोर्थ में ट्राइबल इंडिया है और कुछ बचे हुए कुछ पोर्शन है। ठीक है, फोर्थ बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, बट करें क्या। आपको एक ट्राइबल पे, सबको डेफिसिट भी तो सबको ट्राइबल पे ही है ना। सभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम भी ट्राइबल में ही आती है, सभी पुरुषार्थ लिख देते हैं, है ना। बट जब प्रॉब्लम आती है कि एथनो नेशनलिज्म पे लिखना, तो मुश्किल हो जाता है। एथनिक असर्शंस पे लिखना मुश्किल हो जाता है। अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड एथनिसिटी मुश्किल हो जाता है ना। एथनिक बाउंड्रीज, है ना। ये सब कुछ टॉपिक्स तो इजी हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब चीज़ें, वो तो बहुत इजी है ना। बट कुछ ही टॉपिक्स में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 4 सेक्शनल होंगे, सभी 8 क्वेश्चंस वाले। 8 क्वेश्चंस इन द सेंस दिस इज you have to write 19 questions out of that, right? पूरा full length paper 400 marks, 8 questions से 400 ना, ये 250 है ना। इफेक्टिवली हमारी तरफ से 400 का है, right? You need to choose 5 questions, right, out of that and write, right? That makes it 250 marks. ठीक है, so फुल लेंथ वाले और अच्छा रहेगा। तो जो मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग बता रहा हूँ ना, शुरुआत में सेक्शनल करो, फिर डेली एक पेपर उठाओ, उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज करो कि चॉइस कौन से 19 क्वेश्चंस लिखने हैं, क्योंकि चॉइस एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी,
राइट. मैनी पीपल मेक मिस्टेक इन द फाइनल एग्जाम कि आपने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया. समटाइम यू हैव टू कट द एंटायर क्वेश्चन. तो आपका आधा घंटा भी गया और फिर आपको पैनिक स्टेट में ले आया वो. तो चॉइस एक्टिविटी भी अभी सीखना है. ठीक है. सो ये सब करना है. राइट. डेली यू शुड राइट एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस. राइट. इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद 1 or 2. ऐसा नहीं आज से ही. One more exercise you can do. You can start writing diary in the evening when you are going to sleep. Na, just start writing diary. That will give you words. That will give you flair in language. Right? It will help you to articulate your thoughts. So diary writing is a very good exercise. It's less effort consuming. और एक हॉबी डेवलप हो जाएगी अगले 2 महीने में जो कि इंटरव्यू में लिख दोगे. ठीक है. Just 10 minutes every day. Just pen down your thoughts about anything. अगर मान लिया कि जैसे क्लास के थ्रू आप कर रहे हो तो आप क्लास के साथ सिंक कर लो इसको. जो क्लास में वही कर है ना. फिर आप क्लास के साथ सिंक कर लो. आप अपने टॉपिक, क्योंकि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ टॉपिक्स, राइट. 20 डेज में पूरा एंथ्रो कर रहा हूँ मैं. 10 डेज तो आपका वैसे ही कम कर रहा हूँ. राइट. दूसरा, आप इस वाले काम पे ही फोकस करो फिर. राइट. और 1-2 क्वेश्चन लिख लो. That means you can just take 2 hours extra, 2.5 hours. उस तरह से आप सिंक कर लो. ठीक है. आप अगर पूरा करोगे फिर हम बाद में जैसे एक बार सिलेबस खत्म होगा देन विल चार्ट आउट अ न्यू प्लान. है ना. सिचुएशन के हिसाब से हमें ये प्योरली वो है कि जो एक सेल्फ स्टडी प्लान है. ठीक है. कि बच्चा खुद से ही अपने घर पे देखो. देयर आर पीपल विच आर वेरी मोटिवेटेड. है ना. तो मैं ये जनरली बताता हूँ कि अगर आपको कभी भी करना पड़े, घर पे बैठे भी कुछ करना है और कुछ करने का मन नहीं करा, एक टॉपिक पकड़ लिया. ठीक है. उसके ऊपर सिर्फ ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया. दैट विल हेल्प यू टू थिंक एटलीस्ट. राइट. अगर आपको लगता है कि एक बार रिवीजन हो रखा है, आई नो अबाउट दिस टॉपिक, डायरेक्टली पिक अप द क्वेश्चंस. देयर इज नो नीड टू गो फॉर दैट बिकॉज अल्टीमेटली रिवीजन उसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है. आपने क्वेश्चन देखा, आपने डेफिसिट फील किया. डेफिसिट मीन्स योर ब्रेन इज एक्टिंग एज अ वैक्यूम. इट डिमांड्स नॉलेज, इंफॉर्मेशन. द मोमेंट यू ओपन द पेज, एवरीथिंग विल बी सक्ड इन. राइट. सो दिस विल हेल्प यू इनडायरेक्टली. ठीक है. सो बोथ वे यू कैन डू, बट डू राइट एनीथिंग. और अगर किसी दिन क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया, suppose you start writing any question today, don't leave it till it is finished. ठीक है. या तो लिखना ही शुरू मत करना उस क्वेश्चन को, बीच में गिव अप मत करना. फुल एनर्जी से उसको कंप्लीट करना है. ये याद रखना. डेली इसको रूटीन में ले आओ बिकॉज ये आपका एटीट्यूडनल वो है. सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड में सिर्फ एक ही फर्क है, वो मन से जीते होते हैं. आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट. ठीक है. क्वेश्चन लिखना शुरू किया, अगर आपने बीच में गिव अप किया तो यू विल स्टार्ट डेवलपिंग एन एटीट्यूड कि बस ठीक है यार, हो गया. है ना. मॉक टेस्ट इज द फाइनल टेस्ट. यू आर राइटिंग मॉक टेस्ट एवरी डे. आप घर पे जो 2 क्वेश्चन लिख रहे हो और डेली 2 क्वेश्चन लिखो, मेरे पास आओ, मिल के बात करेंगे इस टॉपिक पे. आप अपने फ्रेमवर्क बनाओ, रोज आओ मेरे पास, बात करेंगे उन पे. ठीक है. जो आपने पहले लिखे थे, बना रखे हैं, वो लेके आओ, विल टॉक अबाउट दैम. अगर नोट्स नहीं है किसी के पास, सपोज, सो आई विल आस्क समवन. डीएसके हमारे पास है. ठीक है. तो आपको वो नोट्स अवेल करा देंगे. ठीक है. क्लास नोट्स जहाँ पे टॉपिक पे, तो आपको नोट्स अवेल करा देंगे. पेपर 2 में लगेंगे. हाँ, मतलब जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए होंगे, विल आस्क योर. जो इस साल नहीं लिख रहे हैं, दे विल हेल्प यू आउट even in framing the answers. I will ask them कि आप उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन लिखो, इनकी आप हेल्प करो, अगले साल ही सेलेक्ट होंगे, आपकी हेल्प करेंगे. दिस इज जस्ट गिव एंड टेक. राइट. इट्स अ रेसिप्रोसिटी, बैलेंस्ड वन. राइट. इट्स नॉट जनरलाइज्ड, isn't it? It's a balanced reciprocity. एक हाथ दे, एक हाथ ले. राइट. बट 1 साल का गैप है, बस इतना ही है. सो दे विल ऑल्सो हेल्प यू पीपल. राइट. मैं इनको बोलूँगा कि इस वाले की फ्रेमिंग करके लाओ, ये गलत करेंगे तो उसमें सुधार के मैं तुम्हें दे दूंगा वो. ठीक है. बाकी मैं तो आपको फ्रेमवर्क दे ही दूंगा. ठीक है. जिस भी टॉपिक पे लगता है कि अभी चाहिए हमें, आप लिख के वो एक ग्रुप में ना, अभिलाषा एक ग्रुप अभी बना लेते हैं सभी लोगों का. ठीक है. उस ग्रुप में क्या करेंगे, सब लोग
क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करते रहो कि इसका मिल जाए तो अच्छा हो, ठीक है, तो सभी को फ़ायदा हो जाएगा उसमें। सो जैसे एक आप लोगों का ग्रुप हो गया, एक और जो क्लास में शाम को आते हैं, है ना, उनका 1-2 ग्रुप हो गए, तो ऐसे 4-5 लोग होंगे, सभी अपने अपने डाइवर्स व्यूज़ देते रहेंगे, तो अच्छा भी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है।